Hello, friends. Good morning. Sat Shri Akal. Today we are going to discuss the science subject video, that is the biology class plus one, and it is the chapter number 3. We are resuming the same thing, that is the chapter number 3, where we are going to discuss different kingdoms, but here we are going to discuss only the kingdom Plantae, in which we have already discussed the class Alga. Now the next class is Bryophyta. You have already learnt in class 9th that kingdom Plantae is divided into 4 or 5 different classes which are further divided. Now you are going to study it in detail. So let's start today's session, and if you have not subscribed to my channel and you are a new viewer, you can subscribe by clicking the bell icon there. Right, so let's start. Bryophytes जो हैं they include the mosses and liverworts. This is a new name आप लोगों के लिए, but you have to remember कि there is a two different types of classes found in Bryophyta, that is mosses and liverworts, and they are already normally grown in moist shaded areas, the areas which are very close to hills or the areas which are very close to canals. यानी जहाँ पर भी नहर, नदियाँ या hills होंगी, shaded areas, moist areas, गीले areas और shaded areas में ही ये grow करते हैं. Now first of all, I want to tell you the structure of the Bryophyta. See, this is the structure of liverwort Marchantia, which is a female thallus, and the B is the male thallus, and this S-shaped is Funaria. When I was in plus 1, I used to remember this structure with the typical structure of Marchantia in the form of M. See, this is a heart shaped, and you can also remember it by looking at its M shape, M for M shape and M for Marchantia, and the difference between the female thallus and the male thallus. And the reason of using the term thallus here is, thallus means जिसका properly root, properly लीफ, प्रॉपर स्टेम ना हो, बल्कि स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हो, बट एक्चुअली लीफ, स्टेम और रूट ना हो. दे आर कॉल्ड एज थैलस और थैलॉइड बॉडी. सो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इट इज़ नॉट ट्री लाइक, इट इज़ नॉट अ प्लांट लाइक, इट इज़ root like, stem like and leaf like structures. So they are only the rudiments of all these stem like and root likes. So there are two different categories in it. Gender there is in it, female and male. Female is marked by this archegoniophore. In plants we use archegonia for females and antheridia for males. एंड आर्किगोनिया जो है वो, देर इज़ अ वेरी गुड फ्लावर, फ्लास्क शेप फ्लावर, एंड देर आर गैमा कप्स जो नीचे गिरते हैं और नया प्लांट्स बनता है, एंड देर आर राइजॉइड्स जो कि रूट लाइक होती है, यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को यहाँ हम राइजॉइड्स बोलते हैं. Similarly, in case of male plant, there is antheridophore, which is not as properly shown. It is just like a rudimentary flask shape, and there is a gamma cup and rhizoids once again. Moving on to the next, this is the Funaria and this is Sphagnum. Sphagnum को हम पीट भी कहते हैं, और ये कहाँ यूज़ होता है हम आगे पढ़ेंगे. जो फिनेरिया है, फिनेरिया में आपको दिखाया गया है गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेज एक साथ. रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो व्हेन आई हैव डिस्कस द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम प्लांटे, आई हैव प्रॉपरली एक्सप्लेन दैट प्लांट हैज़ टू phases in his life cycle, that is haploid phase which is called as gametophyte and diploid stage which is called as sporophyte. So here we can see the gametophyte and sporophyte stage and in one go. So here I have learnt it by F. This is a shape of typical F. The only difference is यहाँ हम F में एक लाइन लगाते हैं जो कि इसमें नहीं है, तो आप फिनेरिया का स्ट्रक्चर ऐसे F से याद रख सकते हैं. एंड बॉडी इज़ टिपिकली डिवाइडेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल. किसी भी ब्रायोफाइट के जो कि मॉसेस हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं. एक फुट होता है जहाँ राइजॉइड्स और मेन एक्सेस होती है, एक सीटा होती है जो कि एक स्टॉक होती है, और एक कैप्सूल होता है विच कंटेन्स स्पोरोफाइट. एंड स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स होती हैं जो जब बर्स्ट होता है फेवरेबल कंडीशन में तो इट बर्स्ट इनटू स्पोर्स, एंड वेर एवर दीज स्पोर्स गो दे ग्रो इनटू अ न्यू मॉस, a new bryophyte. So this is a structure, but here the leaves are in the form of spiral, and this stage represents the gametophytic stage because it decides ki whether there will be a female gamete or the male gamete.
This is the structure of sphagnum, and here also these branches are antheridial branches, and the lower more typical and more broad branches are archegonal branches. Looking at these structures where male and female are present in the same, they ऐसे plants को हम कहते हैं bisexual plants और monoecious plants. Monoecious का मतलब एक ही ब्रांच के ऊपर दोनों sexes are present. So monoecious condition भी इसी को कहते हैं, MONOECIOUS, मोनोशियस कंडीशन भी इसे कहते हैं, और बाइसेक्सुअल कंडीशन भी इसे कहते हैं. और एनिमल्स के केस में ऐसे ऑर्गेनिज्म को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं. बट हेयर सी दीज टू दे आर डिफरेंट, फीमेल इज़ डिफरेंट एंड मेल इज़ ऑन अनदर प्लांट. सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड डाइओशियस कंडीशन, DIECIOUS, dioecious condition, in which male and female are present on the grow on the different plants. But this is also named as unisexual condition, because if you go to the sex, there is only one gender on one plant. So unisexual condition is this dioecious condition. Moving on to the explanation of bryophytes. Bryophytes को हम amphibians कहते हैं, because amphibians are those which live on land but also depend on water. So in the same way bryophytes जो हैं वो अपनी sexual reproduction के लिए water पे depend करते हैं, although they live in soil. Normally इनके जो areas जहाँ ये रहते हैं they are damp, humid and shaded, which means sunlight नहीं आती. damp का मतलब moisture ज़्यादा रहता है, और humid का मतलब जो water content है, moisture का कंटेंट है वो ज़्यादा रहता है. और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले भी करते हैं. अगर कोई आपसे इनके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पूछे तो यू कैन सजेस्ट दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल दे प्ले इज़ इन द प्लांट सक्सेशन. इट मीन्स जो बेयर रॉक्स होती हैं उन पर ये ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से ये रॉक्स को ब्रेक कर देते हैं अपने अंदर से केमिकल्स के सिक्रीट करके, क्योंकि ये मॉइस्टी रहते हैं तो ये रॉक्स को फाड़ने की भी टेंडेंसी रखते हैं. जब रॉक्स टूट जाती हैं तो इट लीड्स टू विदरिंग ऑफ रॉक्स एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सो इन दिस केस रॉक्स से सॉइल फॉर्मेशन में ये हेल्प करती हैं. If we talk about the plant body of bryophytes, so it is more differentiated than that of algae. It means it is having different parts, because alga is very simpler, it is having thalloid structure, but it is in case of bryophytes it is more differentiated because it is thallus like and prostrate or erect. Prostrate means it grows horizontally along the ground, or erect means it is vertical to the ground, and it is always attached to the substratum, which means ये एक base से attach रहता है, या तो unicellular rhizoids की help से या multicellular rhizoids की help से. Rhizoids I have already told you, these are root like structures जिसकी help से वो substratum से attach रहती हैं. इनमें true roots, true stem और true leaves नहीं होते, बल्कि root like, leaf like and stem like structures होते हैं. And the main plant body is haploid, which means gametophyte, यानी ये gametes produce करती है, n number of chromosomes रखती है, और इसके sex organs multicellular होते हैं. Very important, जो sex organs हैं they are multicellular. The male sex organ को हम antheridium कहेंगे, और वो क्या बनाएगा? Anthrozoids. Just and in case of human beings we call the male gametes as sperms and female gamete as egg. In the same way in case of bryophytes we call male sex organ antheridium, और उसमें से जो produce होता है that is anthrozoids. And the female sex organ is archegonium, जो हमने अभी देखा था flask shape, and it produces a single egg. Anthrozoids जो हैं वो large number में water में release होते हैं, and when they come in contact with archegonium of another thallus, an anthrozoid fuses with it and produces the zygote. Zygote जो है वो immediately reduction नहीं करता, वो 2n की form में ही रहता है और एक multicellular body बना लेता है, which is called as sporophyte. Now the sporophyte free living नहीं होते, बल्कि वो अपनी mother gametophyte से attach रहते हैं. Now this event in the cycle of the bryophyte is very important, because they can ask the sporophyte is not free living. तो आप ये लिख सकते हैं कि in the same way as in humans the fetus is attached to the mother's body till the full development, उसी तरीके से इनका sporophyte free living नहीं होता, बल्कि वो photosynthetic gametophyte के साथ attach रहता है, क्योंकि gametophyte उस photosynthesis करके उसके लिए nutrition derive करता है और उसे provide करता है. And some cells after that undergo division, और वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं, जो कि बाद में जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट बना लेते हैं, मेल अलग से एंड फीमेल अलग से.
Talking about the economic importance of bryophyte, the first economic importance is some important mosses like Funaria, Sphagnum, they provide food for the herbaceous mammals, birds and other animals. यानी कि चारे के तौर पे mammals, birds और animals को खिलाते हैं. कुछ स्वेगनम की स्पीसीज़ जो अभी अभी हमने पढ़ा था, ये एक मॉस है जो कि पीट प्रोवाइड करती है, जो कि फ्यूल के तरीके यूज़ होता है. एंड इसको कई बार ट्रांसशिपमेंट में मटेरियल्स की शिपमेंट के टाइम पर पैकिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज़ करते हैं, ताकि क्योंकि इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये पानी को होल्ड करके रख सकती है. मॉसेस को अगर हम लाइचन्स के साथ देखें, जिस तरीके से लाइकन्स दे आर एबल टू कॉलोनाइज द रॉक्स, बिकॉज लाइकन्स के अंदर एक एसिड सिक्रीट होता है. इन द सेम वे मॉसेस के अंदर भी ह्यूमिडिटी होती है, केमिकल्स होते हैं, सो दे कैन ऑल्सो ब्रेक द रॉक्स एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ये रॉक्स को डिकम्पोज करती हैं, सबस्ट्रेट बनाती हैं, जो कि हायर प्लांट्स के लिए मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, जो कि हायर प्लांट्स के लिए अच्छा होता है सॉइल. सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, क्योंकि वो सॉइल में ज़्यादा मैट्स बना के रखती हैं, बड़े बड़े ग्रुप बना के रखती हैं. दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन और सॉइल इरोजन को बचा लेती हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इफ़ यू टॉक अबाउट ब्रायोफाइट्स, तो इनके अंदर इनकी फर्दर 2 सब क्लासेस हैं. द फर्स्ट इज़ लाइवरवॉट, जिसका एग्जांपल हमने मार्केंशिया पढ़ा था, और मॉसेस, जिसका एग्जांपल हमने फ्यूनेरिया और स्फेग्नम पढ़ा है अब तक. इफ़ यू टॉक अबाउट लाइवरवॉट्स, तो लाइवरवॉट्स की थोड़ी सी अलग चेंजेस हैं और मॉसेस कुछ अलग तरीके से रहते हैं. लाइवरवॉट्स मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे बैंक्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल या ट्रीज़ की बाग पे, या फिर वुड्स में यानी कि जंगलों में. इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इसकी प्लांट बॉडी जो है वो थैलॉइड होती है, सेम जैसा हमने पढ़ा. थैलस डॉर्सी वेंट्रली होता है. डॉर्सी वेंट्रल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी डॉर्सल साइड्स हमारी फ्रंट वाली साइड है और वेंट्रल साइड हमारी पीछे वाली साइड है. सो इन द सेम वे प्लांट्स की जो है ऊपर और नीचे की बॉडी को कहते हैं, बट क्योंकि इसकी ऊपर और नीचे की बॉडी एक साथ होती है, चिपकी हुई होती है, उसमें कोई स्पेस नहीं होता, इसलिए वो डॉर्सी वेंट्रल होती है और बिल्कुल सबस्ट्रेट के साथ चिपकी हुई होती है. एंड द लीफी मेम्बर्स के अंदर टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस भी होते हैं 2 रोम्स पे. स्टेम्स के ऊपर छोटी छोटी लीव्स होती हैं. अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है और गैमा कप्स भी बनते हैं, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं छोटे छोटे. गैमा की बात करें, गैमा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑल्सो. यू कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, डिफाइन गैमा. सो जी फॉर गैमा, जी फॉर ग्रीन, ये मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं. रिमेंबर, ये सेक्सुअल बर्ड्स नहीं होती. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एंथ्रीडियम और आर्किगोनिया से ही होगा, बट एसेक्सुअल बर्ड्स जो हैं वो जब नीचे गिरती हैं तो वो नए नए थैलस बना लेती हैं. तो दे आर एसेक्सुअल बर्ड्स एंड दे डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स, जिन्हें हम गैमा कप्स कहते हैं. ये गैमा कप्स के अंदर गैमा बनता है, जो कि थैलस के ऊपर ही है. गैमा जब डिटैच होता है तो वो न्यू इंडिविजुअल्स बनाता है, बट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट थैलाई पर बनते हैं. स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल, एंड आफ्टर मेयोसिस स्पोर्स जो हैं वो कैप्सूल के बीच में बनती हैं और फिर डिस्पर्स होकर नए नए गेमेटोफाइट बना देती हैं. अगर हम बात करें मॉसेस की प्रीडोमिनेंट स्टेज लाइफ साइकिल की गेमेटोफाइट है, जिसमें फर्दर 2 स्टेजेस आते हैं. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइवरवॉट्स एंड मॉसेस. मॉसेस की पहली स्टेज को हम प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं, जो कि स्पोर्स से ही डेवलप होती है. ये एक क्रीपिंग, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में आपको आना ही आना है. इफ़ ब्रायोफाइट कम्स देन दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम. द प्रीडोमिनेंट स्टेज जो लाइफ साइकिल में है मॉसेस की, दैट इज़ this protonema stage and it is creeping, green, branched and filamentous stage. ये फिलामेंट की तरह एक बेल की तरह होती है. लेकिन द सेकेंड स्टेज इज़ लीफी स्टेज, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनोमा से ही डेवलप करती है एज अ लेटरल बर्ड. इसमें अपराइट स्लेंडर एक्सिस होती है, बिल्कुल सीधी एक्सिस होती है, और उसके साइडों पे स्पायरली अरेंज लीव्स होती हैं, और वो बिल्कुल वैसे ही अरेंज होती हैं जैसे सबस्ट्रेटा से, जैसे हमने यहाँ एक डायग्राम में देखा था. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल what we are talking about. So प्रोटोनिमा के बाद दिस इज़ द स्टेज जो इन्होंने बताई है, स्पायरली अरेंज लीव्स होती हैं और इस तरीके से सारा अरेंजमेंट इनका होता है.
सो दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स. अगर हम इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट विल बी बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, वो भी सेकेंडरी प्रोटोनोमा स्टेज में. सेकेंडरी प्रोटोनोमा इज़ नॉट डिफ़िकल्ट स्टेज. यू कैन से कि प्रोटोनोमा में पहले एक फर्स्ट स्टेज बनती है और दूसरी स्टेज में थोड़ा सा वो डेवलप हो जाता है, जिसे सेकेंडरी प्रोटोनोमा कह रहे हैं. इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया दैट सेक्स ऑर्गन्स ही बनेंगे. मेल बनेगा एंथ्रीडिया एंड फीमेल इज आर्किगोनिया. वो लीफी शूट्स के बिल्कुल टॉप पर बन जाएंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा जो कि स्पोरोफाइट बनेगा. स्पोरोफाइट के अंदर फुट, सीटा एंड कैप्सूल होते हैं जो हम ऑलरेडी डायग्राम में देख चुके हैं. अगर हम मॉसिस के स्पोरोफाइट की बात करें तो वो ज़्यादा इलेबोरेट होता है और उसके कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं जो कि स्पोर्स बनने के बाद स्पोर्स बनते हैं मायोसिस के बाद. एंड मॉसिस जो है उनका एक इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल का, वो आपके सिलेबस में नहीं है. इट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट. ये आगे आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे कि कैसे उसकी स्पोर डिस्पर्स होती हैं. सो इट वाज ऑल अबाउट द ब्रायोफाइट्स. यू मस्ट रिमेंबर सम एग्जांपल्स ऑफ इट एज आई हैव टोल्ड यू. Funaria and Sphagnum. If you can remember Polytrichum, you can also learn. If you are learning only one family in one day, then you can learn all the examples related to it because it will help you a lot. So guys, please learn these and also try to make the diagram of all this because it will be quite very helpful in the examination when it comes in biology. You have to draw the diagrams as indicated in the question, and if not indicated and the question is of more marks, you can add the beauty to the answers by drawing the diagrams of it. For example, if they ask for the detailed description of the detailed explanation of this Bryophyta kingdom or liverworts, or write a short note on these stages, so you can draw these diagrams to beautify your answer. So I hope you like this video, and this was all about the kingdom Bryophyta, kingdom Plantae and class Bryophyta. I hope you like this video, and if you like this video, please share this video to your friends so that they can also learn this in this this predictable manner I have done it. So thank you, have a nice day. And I know that today it's pouring much outside. I hope you're enjoying, and try to learn all these things because this time is very precious for you and I don't want that students waste this time. So stay tuned to this channel. Goodbye.